جب دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہوں تو کیا صرف تعداد اور ہتھیار جیت کا فیصلہ کرتے ہیں؟ 2024 میں پاکستان اور انڈیا کی فوجی طاقت کے پیچھے چھپے ایسے راز جنہوں نے دنیا کو خاموش کر دیا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی عسکری طاقت کا موازنہ سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ان دونوں ممالک کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لینا ہوگا۔ 1947 میں برِ صغیر کی تقسیم کے بعد دونوں ممالک نے اپنی الگ فوجی طاقتوں کی بنیاد رکھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک دونوں ممالک نے نہ صرف ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرتے رہے ہیں بلکہ اس پورے خطے میں جیو پولیٹیکل تنازعات نے بھی ان کی عسکری ترجیحات کو شکل دی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان دو بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، 1965 اور 1971 کی وار، جنہوں نے دونوں ممالک کی دفاعی حکمت عملیوں اور فوجی قوت پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ ان جنگوں کے بعد دونوں ملکوں نے عسکری بجٹ کو بڑھایا اور جدید ہتھیاروں کے حصول کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ تاریخی پس منظر اس لیے اہم ہے کہ دونوں ممالک کی عسکری پالیسیوں کو سمجھنے کے لیے ان کی ماضی کی جدوجہد اور تنازعات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پاکستان کی فوج نے ہمیشہ اپنے دفاع کو اولین ترجیح دی ہے، جبکہ انڈیا نے اپنی فوج کو خطے میں بالادستی کے لیے استعمال کرنے کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی عسکری طاقت کا موازنہ کرتے وقت سب سے اہم پہلو افرادی قوت اور زمینی فوج کی طاقت ہے۔ دونوں ممالک کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوجوں میں شمار ہونے والی افرادی قوت موجود ہے، لیکن ان کی تعداد اور ساخت میں واضح فرق ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا کی بڑی فوجوں میں ہوتا ہے، تقریباً 6.5 لاکھ فعال فوجی اور 5 لاکھ سے زیادہ ریزرو فوجی موجود ہیں۔ پاکستان کی زمینی فوج ہمیشہ اس کی دفاعی حکمت عملی کا اہم ستون رہی ہے۔ جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے پاکستان کو اپنے شمال اور مشرق میں انڈیا جیسے بڑے دشمن کا سامنا ہے، اس لیے ملک کی زمینی فوج ہر وقت چوکس رہتی ہے۔ پاکستان کی فوج جنگی تربیت اور عملی تجربے کے لحاظ سے نمایاں ہے، خاص طور پر قبائلی علاقوں میں شدت پسندی کے خلاف جنگ میں اس کا تجربہ قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ انڈیا کی فوج کا شمار دنیا کی سب سے بڑی فوجوں میں ہوتا ہے۔ انڈیا کے پاس تقریباً 1.4 ملین فعال فوجی اور 1.1 ملین ریزرو فوجی ہیں۔ انڈیا کی زمینی فوج تعداد کے لحاظ سے نہایت وسیع ہے اور اس کی دفاعی حکمت عملی میں بھی زمینی فوج کا کردار مرکزی ہے۔ انڈیا کے پاس متنوع زمینی جنگی ساز و سامان موجود ہے، جس میں ٹینکس، بختر بند گاڑیاں اور بڑی توپیں شامل ہیں۔ پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک کی زمینی فوجیں ٹینکوں، توپوں اور بختر بند گاڑیوں سے لیس ہیں۔ پاکستان کے پاس تقریباً 2500 ٹینک ہیں، جن میں سے زیادہ تر چین اور امریکہ سے حاصل کیے گئے ہیں۔ ان میں الخالد ٹینک خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو مقامی طور پر تیار کیا گیا ہے۔ پاکستان کے دفاعی نظام میں ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف انڈیا کے پاس تقریباً 4700 ٹینک ہیں، جن میں روسی ساختہ T-90 اور T-72 ٹینک شامل ہیں۔ انڈیا کی زمینی طاقت میں جدید ٹینکوں کا اہم کردار ہے اور اس کی بختر بند فورس دنیا کی بڑی قوتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ زمینی جنگ کے حوالے سے دونوں ممالک نے اپنی اپنی دفاعی حکمت عملیوں کو بہتر بنایا ہے اور تعداد کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی پر بھی زور دیا ہے۔ پاکستان کی فوج تربیت اور تجربے کے لحاظ سے ممتاز ہے، جبکہ انڈیا کی فوج تعداد اور جنگی ساز و سامان میں آگے ہے۔ فضائی قوت کسی بھی جدید فوج کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ نہ صرف دفاعی مقاصد کے لیے اہم ہے بلکہ جارحانہ کارروائیوں میں بھی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا دونوں نے اپنی فضائی طاقت میں نمایاں سرمایہ کاری کی ہے تاکہ دشمن پر برتری حاصل کی جا سکے۔ پاکستان ایئر فورسز کا شمار دنیا کی بہترین تربیتی یافتہ فضائی افواج میں ہوتا ہے۔ پاکستان کے پاس تقریباً 1400 سے زائد جنگی طیارے موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر چین اور امریکہ سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اہم طیاروں میں F-16، GF-17 تھنڈر،
और मेराज तैयारे शामिल हैं। GF-17 थंडर खास तौर पर काबिल ज़िक्र है क्योंकि ये पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका मंसूबा है जिसने पाकिस्तान को जदीद सलाहियतों में खुद कफील होने का मौका फराहम किया। इंडिया एयर फोर्सेस दुनिया की चौथी बड़ी फ़िज़ाई क़ुव्वत मानी जाती है और उसके पास तकरीबन 1700 से ज़ायद जंगी तैयारे हैं। इंडिया की फ़िज़ाई ताकत में रूसी साख्ता ACU-30 MKI, मेराज 2000 और हालिया राफेल जैसे जदीद तैयारे शामिल हैं। इंडिया एयर फोर्स ने अपनी फ़िज़ाई बेड़े को जदीद बनाने के लिए फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे हैं जो दुनिया के बेहतरीन जंगी तैयारों में शुमार होते हैं। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हिकमत अमली ज़्यादातर दिफाई नौइयत की रही है जबकि इंडिया जारहाना सलाहियतों को बढ़ाने पर तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान के पायलट आलमी सतह पर अपनी महारत और जंगी तजर्बे के लिए मशहूर हैं और उनकी तरबियत बैनुल अक़वामी मयार की है। पाकिस्तान एयर फोर्सेस ने कई बैनुल अक़वामी जंगी मशकों में अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया है। इंडिया की फ़िज़ाई हिकमत अमली जारहाना और दिफाई दोनों नौइयत की है और इंडिया अपने तैयारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। इंडियन एयर फोर्स ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद के साथ साथ दुश्मन की फ़िज़ाई हुदूद में कार्रवाइयाँ करने की भरपूर सलाहियत हासिल की है। फ़िज़ाई ताकत में जदीद टेक्नोलॉजी और रेडार सिस्टम कलीदी हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद की निगरानी और दुश्मन के तैयारों की शनाख्त के लिए जदीद रेडार सिस्टम नस्ब किए हैं जबकि इंडिया ने अपने रेडार नेटवर्क को भी जदीद बनाया है ताकि दुश्मन की फ़िज़ाई हरकत पर नज़र रखी जा सके। फ़िज़ाई ताकत के लिहाज से पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने अपनी अपनी खुसूसियात के मुताबिक जंगी सलाहियतें बढ़ाई हैं। पाकिस्तान फ़िज़ाई दिफा और हमले में अपनी महारत पर इन्हिसार करता है जबकि इंडिया की फ़िज़ाई ताकत तादाद और जदीद तैयारों के लिहाज से बरतरी रखती है। पाकिस्तान और इंडिया की बहरी ताकत भी उनकी मजमूई अक्सरी क़ुव्वत का एक अहम हिस्सा है। बहरी अफ़वाज मुल्क की समंदरी हुदूद के दिफा और तिजारती रास्तों की हिफाजत के साथ साथ जंगी हिकमत अमली में भी अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान नेवी का मरकज़ी मकसद मुल्क की समंदरी हुदूद का दिफा और समंदरी रास्तों की हिफाजत है। पाकिस्तान की बहरी ताकत का ज़्यादातर दारोमदार फेरीगेट्स, सबमरीन और पेट्रोल बोट्स पर है। पाकिस्तान नेवी के पास तकरीबन 10 फेरीगेट्स, 8 सबमरीन और मुतअद्दिद पेट्रोल बोट्स हैं। पाकिस्तानी आबदोज़ें उसकी बहरी दिफाई हिकमत अमली का अहम हिस्सा हैं और उनमें ख़ास तौर पर फ्रांस से हासिल करदा अगस्टा क्लास सबमरीन काबिल ज़िक्र है। उसके अलावा चीन के साथ ताउन से पाकिस्तान अपनी बहरी ताकत को मज़ीद जदीद बना रहा है और मुस्तक़बिल में जदीद तरीन आबदोज़ों और फेरीगेट्स की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान नेवी अपने महदूद वसाइल के बावजूद बहरी हुदूद की हिफाजत के लिए मुस्तकिल तौर पर जदीद कारी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान ने चीन से मिलने वाले मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों को अपनी नेवी में शामिल किया है जिससे उसकी दिफाई सलाहियतों में मज़ीद बेहतरी आई है। इंडियन नेवी का शुमार दुनिया की बड़ी बहरी ताकतों में होता है। इंडिया के पास तकरीबन 150 से ज़्यादा बहरी जहाज़ मौजूद हैं जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर, फेरीगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और आबदोज़ें शामिल हैं। इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्राम आदित्य है जबकि दूसरा कैरियर INS विक्रांत हाल ही में बनाया गया है जो कि इंडिया को खित्ते में बहरी बालादस्ती फराहम करने में मदद देता है। इंडिया के पास 17 फेरीगेट्स, 10 डिस्ट्रॉयर और 16 आबदोज़ें मौजूद हैं जो कि उसकी बहरी ताकत को मजबूत बनाती हैं। इंडियन नेवी की बड़ी और जदीद आबदोज़ें और एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडिया को बहर हिंद में एक बड़ी बहरी ताकत के तौर पर नुमाया करते हैं। पाकिस्तान की बहरी हिकमत अमली दिफाई नौइयत की है और उसका ज़्यादातर ज़ोर अपने साहिली इलाकों और समंदरी रास्तों की हिफाजत पर है। पाकिस्तान नेवी अपने महदूद वसाइल के बावजूद खित्ते में मजबूत बहरी मौजूदगी कायम रखे हुए है और जदीद आबदोज़ों और चीन के साथ बढ़ते हुए ताउन के बाइस अपनी सलाहियतों में इजाफा कर रहा है। दूसरी जानिब इंडिया की बहरी हिकमत अमली जारहाना और बैनुल अक़वामी नौइयत की है
इंडिया की नेवी बहरा हिंद में अपनी बालादस्ती कायम रखने और चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख का मुकाबला करने के लिए मुसलसल अपनी बहरी ताकत को बढ़ा रही है। इंडियन नेवी का मिशन सिर्फ मुल्क की दिफा तक महदूद नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी समंदरी रास्तों की हिफाजत और अमन मिशनों में भी शमूलियत रखता है। बहरी ताकत के लिहाज से इंडिया पाकिस्तान पर वाज़ेह बरतरी रखता है, ख़ास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़े बहरी जहाज़ों की तादाद के हवाले से। ताहम पाकिस्तान नेवी अपने महदूद वसाइल के बावजूद अपनी दिफाई हिकमत अमली और चीन के साथ ताउन के ज़रिए अपनी बहरी ताकत को बढ़ा रही है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों एटमी ताकतें हैं और उनकी एटमी सलाहियतें उनकी मजमूई अस्करी हिकमत अमली में बुनियादी हैसियत रखती है। एटमी हथियारों और मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुसूल दोनों ममालिक के दरमियान ताकत के तवाज़ुन को मज़ीद पेचीदा बनाता है। पाकिस्तान ने 1998 में कामयाब एटमी तजर्बात करके दुनिया को अपनी एटमी ताकत का सबूत दिया। पाकिस्तान के पास अंदाज़न 165 से 170 एटमी वार हेड्स हैं, जिन्हें मुख्तसर और दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ज़्यादातर इंडिया की अस्करी बालादस्ती का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल हैं। गौरी मिसाइल, दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल, शाहीन मिसाइल सीरीज़, शाहीन 1, शाहीन 2 और शाहीन 3 जो मुख्तलिफ फासले तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। नसर मिसाइल, मुख्तसर फासले तक मार करने वाला टैक्टिकल मिसाइल जो एटमी वार हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस पॉलिसी इस बात की अक्कासी करती है कि वो अपनी एटमी सलाहियतों को न सिर्फ दिफाई बल्कि किसी भी किस्म की जारियत के जवाब में इस्तेमाल करने के लिए तैयार रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने मिसाइल निज़ाम को मुसलसल जदीद बना रहा है और ये सलाहियत रखता है कि वो अपने मिसाइलों को इंडिया के किसी भी हिस्से तक पहुंचा सके। इंडिया ने भी 1998 में पोखरान के मकाम पर कामयाब एटमी तजर्बात किए और अपने आप को एटमी ताकत के तौर पर मनवाया। इंडिया के पास तकरीबन 160 से 170 एटमी वार हेड्स हैं और इसके अलावा मिसाइल प्रोग्राम जदीद और मतनू है। इंडिया के अहम मिसाइल ये हैं: अग्नि सीरीज़, अग्नि 1 से लेकर अग्नि V तक, जो मुख्तलिफ फासलों तक मार करने की सलाहियत रखते हैं, और ख़ास तौर पर बैनुल बरअज़मी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि V काबिल ज़िक्र है। पृथ्वी मिसाइल, मुख्तसर फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल, एक सुपर सोंग क्रूज़ मिसाइल जो ज़मीन, समंदर और फ़िज़ा से दागा जा सकता है। इंडिया की एटमी हिकमत अमली नो फर्स्ट यूज़ के उसूल पर मबनी है, यानी इंडिया एटमी हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर हमला होता है तो वह भरपूर जवाब देगा। इंडिया अपने मिसाइल प्रोग्राम को मुसलसल जदीद बना रहा है और अग्नि V जैसे मिसाइल उसकी सलाहियत को आलमी सतह पर बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने अपने मिसाइल दिफाई निज़ाम को भी बेहतर बनाया है। पाकिस्तान ने अबाबील जैसे मिसाइलों को मुतारिफ करवाया है जो मुतअद्दिद वार हेड्स एक साथ ले जा सकता है, जबकि इंडिया अपने मिसाइल दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि दुश्मन के मिसाइल हमलों से बचा जा सके। एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिहाज से दोनों ममालिक ने अपनी अपनी दिफाई और जारहाना सलाहियतों को मजबूत किया है। पाकिस्तान की एटमी हिकमत अमली इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा लचकदार और तेज़ रफ्तार जवाब देने की है, जबकि इंडिया की हिकमत अमली आलमी सतह पर एटमी ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने की है।